Rahulji, it's a pleasure and an honor to be asked to come and speak to everybody because I never considered myself as one of the shining lights of our BMP program. आपसे तो आप ये पहली बार आप आके शेयर कर रहे हो जी सर, फर्स्ट टाइम। एंड आपसे तो मेरी बात भी पूरे 9 महीने में मेरे ख्याल से 3-4 बार हुई होगी। 3-4 बार मुश्किल से हुई होगी, मतलब Yes, sir. मुश्किल से आई barely remember कि आप you've been around because Rohit is a more shy and quiet person. हाँ जी, Sir, so just to let everybody know some background about what I do, and when I joined this course in February 2020. It when did was, this course finish for you? sir, in December 2020, approximately November, December. तो आपको इस कोर्स को खत्म हुए 1 साल हुआ है अभी? Sir, 1 साल हुआ, yes sir. Very nice जी. Okay, now. Sir, so how did I get to know about this? Just in conversation on a work site in Shillong. We were doing a hotel, Taj Vivanta in Shillong, and somebody told me that there's this person who's done this 4-day course, and it's really he's benefited, and now he's joined the 8-month course. And he didn't know the name or anything, but it piqued my interest immediately. So in November, I looked it up on the net. I found Rahul Jain's YouTube videos. I joined the 1-day. Yeah, Hindi. हाँ सर, मैंने ये वीडियोस देखे यूट्यूब पे सर के, और तुरंत मैंने 1-day का कोर्स दिसंबर में ज्वाइन किया, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में। और 1-day कोर्स में 4-day का मैंने कोर्स ज्वाइन किया, विच वाज इन जो जनवरी में था, और 4-day कोर्स के टाइम पे मैंने 8-month कोर्स ले लिया। वेरी नाइस। आपका क्या है? सर, हम MEP कंसल्टेंट है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग। उप्स सॉरी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। आई एम सो सॉरी। नो प्रॉब्लम सर। सर, वी आर MEP कंसल्टेंट्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग कंसल्टेंट्स। सर, जो बिल्डिंग बनते हैं या रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, कमर्शियल बिल्डिंग्स, होटल्स, तो आर्किटेक्ट्स बिल्डिंग की नक्शा बनाते हैं और हम लोग उसको जान देते हैं। वी डू एयर कंडीशनिंग डिजाइन, इलेक्ट्रिकल डिजाइन, plumbing design, firefighting design, all the utilities that go into buildings, my firm designs. We don't execute, we are not contractors. We help the client finalize the orders and the contractors, and then we make sure that the work is done as per our specifications. तो आपका बेसिकली इंडस्ट्री सर्विस है, आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं? Service industry, yes sir, we are service providers. Very good. Supplementary service providers to architects and structural consultants. Okay, और आपका सारा प्रोजेक्ट का काम है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? So not exactly project management. We do a little bit of project management, but we are design consultants. Okay, fair enough. हाँ जी, बताइए। सर, तो 8-month का प्रोग्राम मैंने जब स्टार्ट किया था, अनफॉर्चुनेटली उसी टाइम पे पैंडेमिक भी आया। हम लोग ने 3 in person, मैं दिल्ली आ रहा था मंडे, like this batch I was flying into Delhi every Monday morning, and after 3 sessions we went into lockdown, and then it went online. So I'll just split it up into 2-3 parts. Sir, how many minutes do I have? 5 minutes, 10 minutes? नहीं है, बोलो आप। Okay, so I'll just give you some background to let everybody know my journey, that the fact that I don't have a business family background. I'm from a family of professionals. I'm probably the first person to start a professional business or a professional consultancy business. It's not even a full-on business. I started this consultancy practice in 2003-2004. With 3-4 people, staff and designers, draftsmen, and a couple of engineers. And from 2003 to 2007, it was a good time. We were small. I was able to personally, manage every aspect of the business, including sending bills. I did everything. In 2007, we grew reasonably well, and then the 2008 financial crisis hit us. 2 of our main clients who were responsible for almost 60 to 70% of the fees that we collected, their projects packed up. They were not able to, continue with the projects, and so we hit a very lean patch.
2008 to 2011 was absolutely hand to mouth. It was quite bad, and slowly we again diversified our client list, and things started to improve, but never it was at any point of time till 2016 or 2017 was I able to actually make profit. We had fabulous projects. If anybody who's from Bombay or who comes to Bombay, you get out of the airport, and from the airport you take a car and go into South Bombay, into town, Nariman Point. And if I was sitting next to you, I could show you at least 20 of my projects along that route to the business center of Bombay. But तो जब आपने ज्वाइन किया था तब आपके क्या चैलेंजेस और स्ट्रगल्स थे? सर वही है सर जो which everybody had, not being able to manage cash flows, not being able to give good quality of work to cope up with the work that we had. Sir, business लाना difficult नहीं था सर. In fact, जितने भी काम आए सर हमारे पास ये सब रेफरल्स के थ्रू से ही आए. हम लोग ने कभी सेल्स या मार्केटिंग या ऐसा कुछ किया नहीं कभी कोई किसी सेल्स वाले की जरूरत थी, बट प्रोजेक्ट लाने के बाद आपको करना भी है, फीस भी कलेक्ट करना है सर, वो सब ठीक से नहीं हो रहा था सर. एंड ऑफ साल के एंड में सर वही था सर, जो 10% TDS है उसमें मतलब there was nothing left in the account. At the end of the financial year, there was nothing to show. We were comfortable since it's a small business, as a family, ऐसा कोई problem नहीं था. और सर एक चीज जो है, I didn't have any debt, no WCTL, no overdraft, उसकी जरूरत नहीं है सर, because as a service professional we don't have any raw material का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है सर. ये एक चीज है, मोस्ट पीपल जो भी बैच में है जो मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, आप लोगों को लगता होगा कि हमारे लिए दिस इज नॉट वेरी यूजफुल, बट इट्स द सेम थिंग जो सर आप अभी बता रहे थे. साइंस इज द सेम वेदर योर मैन्युफैक्चरिंग नट्स एंड बोल्ट्स और योर मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग्स. आपको क्या लगता था जब आपने शुरू बात एक ही है सर. मुझे तो सर आपका जो 1 डे का वर्कशॉप का जो फ्लायर था उसमें जितने भी आपने प्रॉब्लम्स लिखे थे ना, आर यू फेसिंग दिस, आई वाज फेसिंग ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम. सो आई न्यू दैट आई वाज गोइंग टू डू योर once I finished my 1 day course, I knew that I was going to do your 8-month course and कि वो मुझे हेल्प करेगा सर. आपके और क्या मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी सर, क्योंकि मुझे उस टाइम पे जो फीस जो है आपका कोर्स का, वो इट वाज नॉट अ स्मॉल थिंग सर फॉर मी, छोटी चीज नहीं थी सर. ओके, आपका जो प्रॉब्लम्स थी वो क्या थी? सर प्रॉब्लम्स तो वही है सर कि कहाँ से फंड्स आ रहे थे, फीस आ रहे थे, मैनेजमेंट ऑफ कैश, मैनेजमेंट ऑफ स्टाफ का एट्रिशन काफी हुआ करता था सर. लोग छोड़ते थे, ट्रेनिंग लेके अच्छे बड़े कंपनी में जाते. तो मेरा फर्म हैड बिकम अ ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर पोटेंशियल, स्पेशली द इंजीनियर्स एंड ऑल दैट. आपका तो टेक्निकल काम होता था कि भाई टेक्निकल था सारा, और टेक्निकल लोग आते थे, ट्रेन होते थे, चले जाते थे, ऐसा होता था. बिल्कुल सर, आपने तो वो चीज को तो एकदम उल्टा कर दिया ना सर. यू मेड इट अपसाइड डाउन and completely change the direction by the implementation of the MDO. I don't know sir whether you have started that part. I think 6 weeks में. अभी कुछ नहीं शुरू हुआ, अभी किसी को कुछ नहीं समझ में आएगा. बट एनीवे, आप और क्या प्रॉब्लम होती थी क्लाइंट्स के साथ या स्टाफ के साथ? सर मैनेजमेंट वाज वेरी डिफिकल्ट सर. एंड में मैनेजिंग दी जो स्टाफ की एक्सपेक्टेशंस और वो सब नहीं हो रहा था. सैलरीज कभी टाइम पे नहीं जाते थे सर. हमेशा वो फाइट रहता था. 25 तारीख को हम सोचने लगते थे कि किस क्लाइंट को फोन करके हाथ जोड़ के बोले सर प्लीज वो फीस ड्यू है, प्लीज जरा दे दे. वो हर महीने होता था सर. क्लाइंट्स के साथ क्या चैलेंजेस थे, वेंडर्स के साथ क्या चैलेंजेस थे? सर वेंडर्स का वही फॉलोअप के चैलेंज. आपने कुछ काम दिया तो होता नहीं था टाइम पे, तो उसके वजह से जो एसोसिएटेड चीजें होती थी वो नहीं होता था सर. और क्लाइंट्स के साथ क्या चैलेंज होता था आपका? सर क्लाइंट्स के साथ तो क्लाइंट का जो चेंजेस करते रहते हैं क्लाइंट्स, वो बहुत प्रॉब्लम होता था, क्योंकि चेंज होता था फिर वो हमारे पास आता तो बहुत टाइम वेस्ट होता था सर. क्लाइंट्स
चेंजेस करते करते रहते थे और हम लोग चेंज करते रहते थे। तो सर हमारा जो रॉ मटेरियल है, वर्किंग कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल है सर, जो हमारे लिए काम करता है। तो हर मिनट जो मेरे स्टाफ और इंजीनियर्स एक चीज पे काम करते हैं, वो उसका कॉस्ट होता है। तो वो बहुत महंगा हो जाती थी, सो फिर प्रोजेक्ट्स वर नॉट प्रॉफिटेबल। ओके, एंड आप हफ्ते में कितने दिन काम करते थे? सर 8 days, ओके, वेरी नाइस। इंक्लूडिंग सैटरडे संडे। एंड सर टाइम का कुछ ये नहीं था सर, देयर वाज नो स्टार्ट। सवेरे स्टार्ट 10, 10:30, 11 बजे स्टार्ट करते थे, फिर रात तक चलती थी सर। एंड नो सेटिस्फैक्शन एट द एंड ऑफ द डे, बस वही होता था सर, सेम सेम थिंग, अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे इश्यूज सेम थे सर। Okay, so then how was your journey? Could you? Sir, first 6 weeks of my of the BMP course was a real revelation for me, sir. The 3 books that you told us to read. So that was one thing, E-Myth Revisited and Profit First. Sir, ये 3 book पढ़ के ही सर काफी कुछ ठीक हो गया सर. A lot of things got so that sir, I don't know if you've told, has everybody read all these 3 books? One thing तो पढ़ा ही होगा ना सर. प्रॉफिट फर्स्ट अभी नहीं पढ़ा, बाकी सब पढ़ लिया सबने. प्रॉफिट फर्स्ट और sir, E-Myth Revisited was like a mirror of my business. I mean, how every page I read, it was like I was talking back to myself, and that made a lot of impact. The 5 out of 5 building blocks of business that you जो आपने अभी सर उसका आपने रेफरेंस लिया है सर, उससे 60-70% उसमें ही हो गया सर. वेरी नाइस. ओके, देन sir, pandemic hit, we all went on Zoom, and it reached a point where in April 2020 I was really wondering कि अब ये बिजनेस में कंटिन्यू कर सकता हूँ या और कुछ दूसरा देखना पड़ेगा. एज अ प्रोफेशनल इंजीनियर, I could always get a good high paying job with any builder developer, but it was because of BCI, the BMP program that I was doing, Rahul Jain's support and the support of my BMP batchmates, that I was able to come out of it. Like everybody faced a problem during the सब लोग का problem था सर. Pandemic में तो बहुत सारे issues खड़े हो गए, but सर September 2020 तक almost सब कुछ solve हो गया सर. उसके बाद I have not looked back. मुझे कभी सोचना नहीं, अभी तो सब कुछ ऑटो पायलट पे, जो पहले सोचना पड़ता था सर, कैश फ्लोस कहाँ से आएंगे, पेमेंट्स कहाँ से आएंगे, सैलरीज कैसे टाइम पे जाएंगे, तो वो सब ऑटोमेटिक हो गया सर. आपके सिस्टम लगा के अभी कुछ उसमें कोई इश्यूज ही नहीं है. very nice, very nice. Okay, so would you like to show us some of your systems, guys? Sir, I just want to show sir, that even in spite of my systems, they're terrible, sir. They're not great at all. Maybe I have managed to implement 30-40% of what you would have liked me to implement, sir. But in spite of that, just by so the thing is that this program that you guys are doing, अभी आप लोग आप लोगों को शायद समझ में नहीं आएगा, लेकिन 5-6 महीने के बाद फिर आप ऑर्डिनरी नहीं हो सकते. I hope that everybody, जितने लोग अभी 380 participants are there, 82, so at least there must be 375 including BCI staff. मैं मेरी ये है कि आप इसमें से कोई भी बैकआउट नहीं हो. प्लीज फिनिश इट ऑफ. इट इज वेरी बहुत 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 मुश्किल है. इट वाज सबसे टफ पीरियड मेरे लाइफ का. ये 1 साल 2020 था, जिसमें ये मोमेंटस चीजें हमको देखने को मिली. Awesome. So don't kid yourselves कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. सर एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, ये प्रोग्राम में सक्सेस होने के लिए you don't have to be intelligent, you don't have to be smart, you just have to follow blindly whatever Rahul Jain says.
don't try to, especially जो technical लोग हैं, जो I'm also an engineer, so I also try to analyze everything and I made mistakes. मैंने बहुत सारे गलतियां की, जो मैंने सोचा कि नहीं नहीं सर तो बोल रहे हैं लेकिन मैं ऐसे करूंगा तो भी हो जाएगा, नहीं हुआ। अल्टीमेटली जो जिस जिस चीजों में सर ने एम्फेसिस दिया उसी आपको करना पड़ेगा। आप करोगे विदाउट सोचे समझे, जस्ट पुट ऑन ब्लिंकर्स ऑन बोथ साइड्स एंड कीप लुकिंग स्ट्रेट and keep going, that's it, done. It will happen. Out of the 10 things, जो 10 चीज आप डिजायर करोगे आपके बिजनेस में, पर्सनल लाइफ में, हर जगह में, आप 8 चीज तो आराम से आप तो पाओगे। Pareto's principle will be applicable no matter what you do. Sir, 4 AM is concept is on और अभी 8 AM चल रहा है सर? अभी 8 AM ही चल रहा है, तो डराओ मत। So, but that is that वो एक ट्रांसफॉर्मेशनल चीज है सर, जो आपने जो 4 AM करा है सर, that is what changed all our lives, really. I mean, बाकी सब ठीक है, it's possible to you can implement systems available है। जो सर सिखा रहे हैं हमको वो कुछ ऐसा कुछ नया रेवोल्यूशनरी चीज नहीं है, लेकिन सर ने ऐसा पैकेज बनाया है। So we lost you, Rohit. करोगे तो कोई चांस ही आपको रिपीट करना पड़ेगा। आपने बोला ना, आपने बोला सर ने ऐसा पैकेज बनाया, वहां उसके बाद आप सर ने जो पैकेज बनाया है, जो चीजें आप लोग करोगे, ये जो मॉड्यूल अभी 6 हफ्ते का तो पर्सनल प्रोडक्टिविटी का मॉड्यूल मोरलेस अभी हो रहा है, आप लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये आपको लाना ही लाना है। आप कुछ नहीं करो, आप कोई ये अगले हफ्ते में जिसके पास ये नहीं है, बाकी सब काम छोड़ दो, बाकी सब काम छोड़ दो, जस्ट फाइंड एन ये एंड इम्प्लीमेंट दैट, बिकॉज इसके आगे आपका काम नहीं होगा और भी आपको करना पड़ेगा जो सर इम्प्लीमेंट कराओगे आपसे। प्लीज डोंट थिंक कि why should I spend this money on this particular technical training or hiring this person or PC, DME, all these things are coming. Don't even think once. If sir says get this guy on board in 15 days, you try and get this guy on board in 5 days, 10 days, you will be ahead of everybody else. You will also, आप लोगों को लगेगा भी नहीं यार हमसे नहीं हो रहा है, बाकी सब लोग तो बहुत कुछ अचीव किया बट हम नहीं अचीव कर पाए, ऐसा कुछ नहीं है। आपका कैसा था, आपको कैसा लगता था? सर एक दो चीज सर, डीएमई तो मैंने हायर नहीं किया, मैंने इंटरनली मैं सोचा करूंगा, तो वो बड़ा प्रॉब्लम हो गया सर। तो सिस्टम्स और अभी तक जो सिस्टम्स इम्प्लीमेंट करने में बहुत दिक्कत हुई सर। मेरा सिस्टम एकदम बेकार है, आई विल बी वेरी ओपन, मैं दिखा भी दूंगा। दिखा दो जी, बेकार सिस्टम दिखा। I spoke to Rohit yesterday. I think this was the first call I have ever made to Rohit in my life. और मैंने कहा कि रोहित आज आप देखेंगे, so let's see। अब मैंने रोहित का कभी कुछ दिखा नहीं है, अब let's see रोहित ने क्या किया। सर पीटना मत सर। बोलो सर ये हमारा एक सर वी डू प्रोजेक्ट्स, वी डू वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, घर, बंगलोज, इंटीरियर्स, ऑफिस इंटीरियर्स, होटल्स। तो सर ये हमारा प्रोडक्शन है। कैन एवरीबडी सी दिस व्हाट आई एम हाइलाइटिंग? दिस इज द नेम ऑफ द पर्सन। ये प्रोजेक्ट है आपका, प्रोडक्शन है नहीं, आपका प्रोजेक्ट्स है, क्योंकि फैक्ट्री तो है नहीं आपकी। सर जो हम प्रोडक्ट्स ड्राइंग्स प्रोड्यूस करते हैं ना सर, so that is our output sir। तो आपने, if you want to make an analogy between the people who are in manufacturing and the people who are in services, ultimately you are delivering some product. It might be soft, it might be a tangible object like a nut or a pen or something, but ultimately it is a product। तो चाहे आप जीएसटी के डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो, चाहे आप आर्किटेक्ट ड्राइंग दे रहे हो, प्रोजेक्ट की रिपोर्ट बना रहे हो, और पीछे कोई बोल रहा है, अगर इफ यू कैन हैव देम कीप क्वाइट आल्सो, इट विल बी रियली नाइस।
ओके, तो अब ये समझा दी, ये क्या है, ये आपके प्रोजेक्ट, ये आपकी प्रोजेक्ट की लिस्ट है? हाँ सर, ये एक प्रोजेक्ट है सर, जो हमारा एक बॉम्बे में चल रहा है। तो इसमें वेरियस टास्क है सर, और इसमें हमारा प्लान डेट, एक्चुअल डेट लिखा हुआ है, उसकी स्टेटस है सर, और फॉलोअप, ईमेल, सब कुछ है। तो ये वेरियस उसके टास्क है जो चल रहे हैं सर। तो सारे टास्क लिख के, पहले लिख के कागज पे आ गए हैं? हाँ सर, हम लोग एक लिस्ट ऑफ डिलीवरेबल्स बनाते हैं, और फिर वो डिलीवरेबल्स ये शीट पे उतार के उसको डेट्स वगैरह देते हैं, तो ये इजीली ट्रैक हो जाती है सर। पहले ये सब होता था? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, होता था, ऐसे नहीं कि नहीं होता था सर, लेकिन वो एक्सेल में होता था। तो एक्सेल में आप ट्रैक नहीं कर सकते, एक्सेल इज लॉक्ड ऑन समबडीज कंप्यूटर। अगर एक्सेल आप कहीं शेयर करोगे तो फिर वो जो रिवीजन है वो अलग रहेगा, और जिसके पास किसी ने अपडेट किया सर, तो ये जो सर आपने गूगल का जो गूगल शीट्स, गूगल फॉर्म्स और वो सब करा है सर, दैट इज द मोस्ट इनवैल्यूएबल टूल। बस इतना भी आप करोगे, गूगल स्वीट आप इम्प्लीमेंट करोगे ठीक से, तो इट्स 80% ऑफ द वर्क डन। बाकी सब आप, आपके जो सिस्टम्स वगैरह है वो सब बोनस है सर। हाँ सर जी। तो ये, सो दिस इज वन थिंग सर। देन यू मेड अस इम्प्लीमेंट वेरियस चेकलिस्ट सर। ये हमारा एक इंश्योरेंस का चेकलिस्ट है। ऐसे बहुत सारे चेकलिस्ट है जो मिनियल, आई मीन नॉन टेक्निकल काम में भी आ जाता है। सो this frequency is given, due date is given, so we never miss an insurance payment now, we never ऐसा कोई ये नहीं होता है कि डेट चला गया या कुछ यू नो उसमें, तो ये भी इजीली हो जाता है सर। Now, what you have a master list of all your systems? सर नो सर, इट्स सेपरेट सेपरेट सर, अलग अलग है सर। ओके, और क्या क्या सिस्टम लगाए हैं आपने प्रोजेक्ट को सर मैनेज? फिर, हाँ सर, फिर सर एक ये जो मेन जो प्रोजेक्ट का जो समझो एफएमएस इज व्हाट वी कॉल इट सर, तो इसमें सब कुछ आ गया सर। ये एक प्रोजेक्ट का है, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक छोटा सा बंगले का प्रोजेक्ट है। तो तो ये अपना जो काम का जो दिस इज द वर्क दैट इज टू बी डन। देन सर हमारे यहाँ रिविजन्स बहुत होते हैं, बिकॉज क्लाइंट कीप्स चेंजिंग हिज माइंड और आर्किटेक्ट कीप्स वांटिंग टू डू इट। तो ये रिवीजन, फिर इसकी स्टेटस सर, ये फिर फॉर्म उसमें एम्बेड है सर, जो चेकलिस्ट है, जिसमें आप, आई जस्ट सी इफ आई कैन ओपन दिस वन थिंग सर। इसको पहले आप एफएमएस दिखा दीजिए पूरा, ये स्टेज बाय स्टेज ऊपर वाला जो है। हाँ सर, तो ये फिर ऐसा राइट में चला जाता है, तो ये सारे पूरा स्टेप्स आ फॉलो। जाते हैं फॉर हाँ द सर, होल थिंग। ड्राइंग रिव्यू सर, आप यहाँ देख सकते हैं, सेंड ड्राइंग्स बैक फॉर करेक्शंस। तो ये सर हमने बनाए थे सर, करेक्शंस इशूड। ये तो खाली है पूरी? 10-15 स्टेज का एफएमएस है सर। तो ये तो खाली पड़ी है पूरी? अच्छा, आपका ये हाँ प्रोजेक्ट शुरू हुआ है? हाँ सर, ये अभी प्रोजेक्ट शुरू हुआ है सर। ओके, तो जो वैसे अब ये प्रोजेक्ट्स आपके टाइम पे होने लग गए हैं? बहुत 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 फर्क पड़ा है सर। कितना फर्क पड़ा है? पहले क्या होता था, अब क्या है? सर पहले 20-80 होता था, अभी 80-20 हो रहा है सर। मतलब? सर पहले 10 में से जो टारगेट या कोई टारगेट डेट होता था ये कंप्लीट करने के लिए, तो उसमें से ऑन टाइम 2 होते थे, अभी ऑन टाइम 8 होते हैं सर। 8 में से 10 होते हैं। वेरी नाइस। और जो 2 लेट होते हैं वो क्लाइंट की वजह से होते हैं, आपकी वजह से होते हैं? सर कभी हमारे वजह से भी होता है, कभी कोई स्टाफ है, और बहुत बहुत सारे टाइम में तो मतलब अनअवॉइडेबल, मतलब हमारे इसमें नहीं है सर, कि कोई डेटा नहीं आया या कोई इनपुट नहीं आया जो आना था, और उसके वजह से लेट हो गया सर। लेकिन अभी ये सब चीज कैप्चर हो जाते हैं सर, हमको पता है कि अगर ये जो इनपुट्स नहीं आते हैं, हम लोग सब साथ में काम करते हैं, वी वर्क एज अ टीम ऑफ 4-5 डिजाइन कंसल्टेंट्स। तो जो हमको पता रहता है कि अगर स्ट्रक्चरल ड्राइंग टाइम पे नहीं आएगा और बीम और कॉलम आर्किटेक्चरल प्लान में इनपुट नहीं होगा, तो हमारा आगे का जैसे एयर कंडीशनिंग का डिजाइन हो या फायर फाइटिंग का डिजाइन हो, तो वो ठीक से नहीं होगा, और फिर उसमें रिवीजन होगा या रीवर्क होगा जो, तो हम लोग वो अभी करते ही नहीं है सर। जब तक वो नहीं आता है तब तक हम आगे का काम करते नहीं। वेरी नाइस। ये मेल ट्रैक, तो ये सारा का सारा तो प्रोजेक्ट इसी पे होता है?
हाँ सर, एक तो ये प्रोजेक्ट वाइज होता है सर, और ये मेल ट्रैकर सर हम लोग ने सिस्टम लगाया सर। हमारे ऑफिस छोटा है सर, वी आर 20-25 पीपल, सो एवरी मेल दैट कम्स इन, इट गोज ऑन टू दिस ट्रैकर एंड इट इज ट्रैक्ड अंटिल ईदर इट इज जो डेटा देना है वो दे देते हैं, या हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं कि वी विल गिव यू दिस डेटा बाय सो एंड सो डेट, और फिर मतलब उसमें ये आपका टिक मार्क हो सारी, जाता है। आपकी कंपनी में जितनी ईमेल आती है सारी ट्रैक होती हैं? हाँ सर, बिल्कुल 100%। तो मतलब हर ईमेल का रिस्पॉन्ड होता है, और हर ईमेल इन योर ऑर्गेनाइजेशन इज ट्रैक्ड कि भाई इस ईमेल का हो गया, नहीं हुआ, काम हुआ, नहीं हुआ? यस सर, देख लो ना सर इसमें और जो मेन बॉडी ऑफ मेल है वो भी इसमें आ जाता है सर, तो एनीबॉडी कैन लॉग इन एंड जस्ट चेक, उसका और ये सब बताया ऑटोमेटेड? जाता है। ये सब ऑटोमेटेड है? ये सब ऑटो, इसमें सर कुछ यू कैन से सेमी ऑटोमेटेड, बिकॉज माय पीसी शी डज दिस एंड शी डज अ गुड जॉब सर। अच्छा, शी एवरीथिंग इज ट्रैक्ड, तो वी डोंट मिस आउट एनीथिंग, और इसमें एटलीस्ट 90% चीज कवर हो जाते हैं सर। आपको घुसने की जरूरत नहीं पड़ती? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। तो मेल आई, एक ये चेक्स द मेल एंड मे बी वंस अ डे, अगर कुछ किसी चीज को मुझे स्पेसिफिकली सर, कभी काफी टाइम कुछ टेक्निकल चीज रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, या तो मैं डिक्टेट ही कर देता हूँ या मैं खुद जाके कर लेता हूँ, बट आई डोंट स्पेंड, आई चेक माई मेल्स वंस अ डे सर। वेरी नाइस। और पहले क्या होता था? सर पहले तो मेल पे ही होते थे सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आपके जो सारे टाइम कंज्यूमिंग थिंग थे, अब जो टेक्निकल चीजें हैं जैसे कॉस्ट शीट है, कॉस्ट एनालिसिस है, या जो टेक्निकल काम थे जो आप करते थे, वो सारे सर उसके काम? लाइब्रेरीज बने हैं सर, काफी कुछ लाइब्रेरीज बने हैं, नॉट ऑल, आई विल नॉट से कि 100% है, बट ये इनके लाइब्रेरीज बने हुए हैं सर। एक एक ये है कि बिकॉज इट्स अ टेक्निकल जॉब सर, हम लोग ऑपरेशन से ऐसे पूरी तरह से हट नहीं सकते, तो दिन में आई स्पेंड अबाउट एन आवर टू 2 hours to give technical inputs to my team, and then beyond that I am not involved in the operations sir। और मंडे को तो ये होता है सर हमारा वीकली रिव्यू तो शेड्यूलिंग फॉर अभी द अगर वीक मैं फॉर आपसे वीक। पूछूं कि ऑपरेशंस में आपका हफ्ते में कितने दिन लगता है, तो व्हाट इज योर आंसर? सर यू कैन से 1 hour सर, totally out of 6 working days, that is Monday to Saturday, maybe totally all of the week put together, maybe 1 day sir, or 2 day to 1.5-2 days, उससे ज्यादा नहीं होता सर। तो अभी 1.5-2 days में आप अपना पूरा बिजनेस मैनेज कर रहे हाँ, बिल्कुल सर। हो? और पहले? पहले तो लगे रहते थे सर, शाम सुबह से रात तक। तो अब आप बिजनेस ऑपरेशन से निकल गए हो? हाँ सर, यू कैन से दैट, एटलीस्ट टू अ लार्ज एक्सटेंट। ऑपरेशन से हम निकलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि टेक्निकल रिव्यू और इनपुट्स ये काम में जैसे आर्किटेक्ट्स करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है सर, लेकिन अभी क्या एक डायरेक्शन दे दिया तो काम हो जाता अब आप सिर्फ डायरेक्शन देते हो और काम हो जाता है? है। बिल्कुल पहले बिल्कुल क्या सर। होता था? पहले तो सब कुछ करना पड़ता था, कराना पड़ता था सर, और चेक कराना पड़ता है सब। Every- that is not so that is sustainable to a certain level of size of business. If you want to go and you want to grow and you want to grow like you're saying, your punchline DYP, जो DYP आपको करना है, double your profits every year, और put your business on autopilot, तो ये सब चीजें implement नहीं करने से नहीं होगा। I mean, आप नहीं करोगे तो नहीं होगा आपका सर। पहले मेरा जो मार्च 2020 का जो टर्नओवर या फीस कलेक्शन जो था, वो मार्च 21 में कम हो गया। इट बिकेम लेस बिकॉज इट वाज ऑलमोस्ट 30% डाउन इन मार्च 21 कंपेयर टू मार्च 20 बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक। 4-5 महीने हम लॉकडाउन में थे, काम नहीं किए सर, लेकिन मेरा प्रॉफिट उतना ही था। प्रॉफिट उतना ही रहा? प्रॉफिट उतना ही था सर, 30% डाउन टॉप लाइन, बॉटम लाइन सेम। और प्रॉफिट कोर्स करने से पहले और अभी कोर्स करने के बाद आपका सर अभी प्रॉफिट? मार्च मार्च 22 में सर मेरा जो अभी जो मुझे दिख रहा है, सो वी विल डू 100% इंक्रीज इन टॉप लाइन एंड 2.5x इन बॉटम लाइन सर। 2.5x मतलब? 2.5 times the profit as compared to March 21 वाओ, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। सर। और ये सब जो आप देख रहे हैं सर, एकदम घटिया सिस्टम, शीट्स एकदम सिंपल स्टार्ट वाला है, लेकिन फिर भी चल रहा है सर, ऐसा ऐसा कोई इशू नहीं है।
एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट मिल गया ना, आपके प्रॉफिट आपके रिजल्ट मिल गया times हो बिल्कुल, गए। रिजल्ट इज अचीव सर। लेकिन वो सर जो आप बोलते हैं ना, जो फोर एक्सप्लोसिव ग्रोथ ऑफ 4 times 10 times, सर वो होगा जब भी सिस्टम्स पूरे इम्प्लीमेंट होंगे, नहीं, बिकॉज बियॉन्ड अ पॉइंट इट इज नॉट सस्टेनेबल। अभी हमारे को ग्रोथ 4 टाइम 5 टाइम्स करनी नहीं, अभी तो हमको सिर्फ नॉर्मल करनी है। अब और लाइब्रेरीज दिखा दीजिए, आप कह रहे थे कि टेक्निकल कामों की लाइब्रेरीज हो गई हैं। सर इट इज सर एक मिनट, मैं मुझे ढूंढना पड़ेगा सर। तो अब ये शीट्स आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं सर, मोस्टली नहीं सर। अब ये शीट्स अपने आप चल रही है, सिस्टम अपने आप चल रहे हैं, आप इसमें चल नहीं। रहे सर, मैं नहीं घुसता हूँ सर, लेकिन अपडेट्स तो लेना ही है। You can't abdicate your responsibility. You have to monitor. You have to make sure at least once a week you make sure that everything is going properly. वंस अ वीक में हो जाता है ना। हाँ हो जाता है सर। To second, maybe one more day of the week when you have a town hall with your staff and review what all is going on, solve all their problems. बस बाकी आगे नहीं सर। वेरी नाइस जी। कॉस्टिंग वॉस्टिंग भी सर ये एक चीज सर मुझे बहुत हेल्प किया और मैं शेयर करना चाहता हूँ। जो 4 अकाउंट सिस्टम मैंने लगाया उसमें बहुत बहुत मतलब it was probably one of the most valuable takeaways for me personally for BMP, the 4 अकाउंट सिस्टम जो मैंने, और उसमें we split up the सर मेरा वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा कुछ नहीं है सर, मोस्टली मेरे सारे चीजें फिक्स्ड कॉस्ट में ही जाते हैं। हाँ, तो अब जो आपका टेक्निकल कॉस्टिंग वॉस्टिंग है, ये सब है, ये सब भी स्टाफ कर लेता है, क्या होता है इसमें? हाँ हाँ सर, स्टाफ कर लेता है सर। अब और पहले सर क्या, मेरा स्टाफ मतलब सर एमडीओ ही कर लेता है। पहले एमडीओ मतलब ये 10-15 हजार रुपए की पीसी हाँ वीसी जी, हाँ जी सर। कॉस्टिंग आपकी पीसी कर लेती है, 15 हजार रुपए की नॉन टेक्निकल लड़की। क्योंकि वो सब है सर, अभी वो ये भी हो गए सर, क्या आप बोलते कहने हैं। की कोशिश कर रहे हो कि सारी कॉस्टिंग वॉस्टिंग जो आज मालिक बैठ के करता है, वो सारी एक 15 हजार रुपए की हाँ होगी। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल और वो एब्सोल्युटली। भी आपके जैसे प्रोजेक्ट में जिसमें सारा आपके क्या क्या है, सारा इलेक्ट्रिकल है सारा, और क्या क्या है? सर वी डू एयर कंडीशनिंग, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, फायर फाइटिंग, फायर अलार्म, बिल्डिंग मैनेजमेंट, वाटर ट्रीटमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट। सर जितने भी कोई कॉम्प्लेक्स होटल जैसे सूर्या में आप जो भी सब टेक्निकल सर्विसेज है, लॉन्ड्री, वो सब हमारे डिजाइन हो जाते सब सब कर रहे हो? हैं। हाँ सर। वेरी गुड। और ये सारा का सारा आपकी सर ये 3 महीना लगा सर इसको सब सेट होने के लिए। सर सब चीज थे, ऐसे नहीं कि वी डिडंट हैव इट, वी हैड इट, वी जस्ट डिडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर in one place properly so that it could be anybody could use it. तो अभी सारे काम कोई भी कर देता है? हाँ सर। सर कोई भी नहीं, जो असाइंड है उसमें वो हाँ, कर मतलब लेता है। एनीबडी विद नॉर्मल 15-20,000 रुपी नॉन टेक्निकल पर्सन कैन ऑल्सो डू इट। बिल्कुल, all my engineers are now free to focus on design. I mean that is very important, at least for us. तो अब इंजीनियर झाड़ू पोछा उनको नहीं करना पड़ता है, कोऑर्डिनेशन उनको नहीं करना पड़ता। वेरी नाइस, वेरी नाइस। Anything else that you would like to share or any questions anybody has? Sir, I'll just share my name and number. Baki any questions, please, any most welcome. ये रोहित का नंबर है, नाम है, कंपनी क्या है आपकी, कंपनी का नाम क्या है? Integrated Technical Services. फर्स्ट 3 months जर्नी ऑफ बीएमपी कैसी रही आपकी, कोई पूछ रहा है? It was fabulous. It was a revelation, the most transformational period of my business and I've been doing this from 2004, sir. चैलेंजेस क्या थे? सर वो टाइम पे तो मेजर चैलेंज कोविड था, तो एक इट वाज लक, हमारे लिए थोड़ा लकी भी हो गया कि कोविड के वजह से हम आपके जो काम कराते थे हमसे, वो आपका बिजनेस बंद था, सब कुछ बंद था, 2 महीने के लिए तो ऑलमोस्ट एकदम बंद ही था सर। और फिर भी आपने सिस्टम्स इंप्लीमेंटेशन करवा लिया। हाँ सर। सर वो जी स्वीट इम्प्लीमेंट करने से बहुत कुछ स्ट्रीमलाइन हो गया सर। जी स्वीट मतलब जो टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करी आप? सर वो सिंपल चीज है, जो आप सब सिस्टम्स गूगल ड्राइव पे आप लेते हो और उसका आपका जितना भी डेटा है आप उसमें यूज करते हो, और जो कोलैबोरेटिव काम होता है ना सर, जो गूगल शीट्स पे या गूगल डॉक्स पे, सर
that is unbelievable, sir. एंड Fantastic. आपकी सारी कंपनी अब गूगल डॉक्स पे आ गई, सारे लोग वहीं पर काम कर रहे हैं। सर इतना इजी नहीं है सर, क्योंकि हमारा जो ड्राइंग फाइल्स है काफी बड़े हैं, तो वो सर्वर पे है, बट आवर सर्वर इज आल्सो ऑनलाइन। वी बीन वर्किंग फ्रॉम होम सर। ऑफिस का तब ऑफिस है, वी आर मूविंग टू अ न्यू ऑफिस इन द नेक्स्ट 2-3 days सर, लेकिन एक्सपांड भी हो जाऊंगा तो मैं ऑफिस बड़ा नहीं करूंगा। अभी सब स्टाफ वर्क फ्रॉम, सर 2 साल में तो वर्क फ्रॉम होम ही हुआ सर। खुलने के बाद भी हम लोग वर्क फ्रॉम होम ही करते थे। तो ऑफिस हफ्ते में 1 बार 2 बार आके जो भी चीजें क्लियर करके लेने थे वो ले लिए सर मेरे से। अब ये सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम में ही है। और अभी अगर आपका बिजनेस एक्सपैंड करके डबल ट्रिपल इसके बाद 10 गुना हो जाए, तो आपको कितने दिन लगेंगे हफ्ते में काम करने को? सर सेम सर, वो है तो सेम है सर। आपको जो सब रिव्यूज करना है तो 2-3 मिनट लगते हैं तो सर। एक अभी आप घंटे का 1.5 घंटा हो जाएगा सर। तो अभी आप मतलब एक एक दो दो तीन तीन मिनट में आप सब हर एक बंदे का पूरा वीकली पूरा परफॉर्मेंस ले लेते हो? सर वो ये ईएम्स अभी 3-4 महीने से लेना बंद किया सर, क्योंकि वर्क प्रेशर इतना हो गया है कि पीपल आर वर्किंग डे इन डे नाइट सर। काम सर जो जो भी 2 साल का जो कोविड का जो लैग था ना सर, अभी एकदम विद अ वेंजेंस आ गया है सर। तो अभी आपने अपना वेंजेंस में आ गया है, इट्स गॉन क्रेजी सर। आपका तो प्रॉफिट इतना बढ़ गया, तो इसमें आपको स्टाफ कितने एक्स्ट्रा हायर करने पड़े? सर 10-10-30% मोर। 10 हायर करने के बाद भी आपका प्रॉफिट 2.5 गुना बढ़ गया? हाँ सर। सर वो सब आपका 4 अकाउंट सिस्टम में ही सेटल हो जाता है सर, उसका कोई सोचने की जरूरत ही नहीं। तो इट्स ऑटोमेटिक। लोग अगर हायर कर लें, वो कंपनी में खर्चा है या क्या है? सर खर्चा नहीं है सर, वो हमारा रॉ मटेरियल है सर, उसको तो इट्स द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट वी हैव इन कंसल्टिंग बिजनेस। तो आपको लोग अगर हायर करने में अब प्रॉब्लम नहीं होती, ऐसा नहीं लगता खर्चे? नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तो जब बिल्कुल आप नहीं सर। सर जो मैंने टारगेट सेट करके दिया है, जो वर्किंग कैपिटल जो हम लोग एलोकेट करते हैं परसेंटेज वाइज, जो इनकम से जो वर्किंग कैपिटल का जो अकाउंट है, उसमें माय टीम हैज टू प्ले इन दैट एंड मेक श्योर दैट इट इज नॉट इंक्रीजिंग। अगर इंक्रीज होता है सर, 1-2 बार 2 साल में हमको रिजर्व्स में से फंड करना पड़ा, सैलरीज बोलो या जो भी बोलो, लेकिन उससे ज्यादा नहीं सर। आपके पहले कंपनी में रिजर्व कैश रिजर्व थे कंपनी में? 0 सर। और अब कितने महीने के कैश रिजर्व है? 6 महीने की है सर। 6 महीने के कैश रिजर्व मतलब? आए, अगर 1 रुपया भी नहीं आए तो 6 महीना चला लेंगे सर। मतलब अगर 1 रुपए भी क्लाइंट ना दे, तो अगले 6 महीने तक आप पूरी तनख्वाहें और सारे खर्च बिल्कुल सर, कर कोई लो? इशू नहीं सर, कोई इशू नहीं। पूरा मतलब चिल्ड आउट है? कोई प्रेशर नहीं कि अभी कैश फ्लो पैसा आया नहीं आया, अगले महीने की? सर क्या हुआ कि जब ये सिस्टम इम्प्लीमेंट हो गया तो मेंटली बहुत फ्री हो गया सर। वी आई बिकेम मेंटली फ्री टू परस्यू द थिंग्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट टू द कंपनी। इवन ओल्ड आउटस्टैंडिंग डेट सर, जो मुझे लगा कि ये तो चांस ही नहीं है, अभी ये तो चेस करके भी कोई मतलब नहीं है सर, वो भी आ गए सर। वो कलेक्शन सिस्टम सर लगा? आप मैंने सर कलेक्शन सिस्टम आप बोलो, मैनिफेस्टेशन बोलो, आई डोंट थिंक सो अभी आपने मैनिफेस्टेशन वगैरह किया है नहीं। सर। और मैंने ऐसा स्टांस लिया क्लाइंट्स के साथ जो पेरेनियली जो पेमेंट नहीं देते थे सर। पहले क्या होता था, क्लाइंट आपको, सर ये हर लाइन में होता है, क्लाइंट आपको बोलता है बस ये काम करो, ये इसका मैं पहले पहले के पैसे इतने दे रहा हूँ, फिर आगे का मैं दे दूंगा। सो इन दैट लालच या जो एंटिसिपेशन ऑफ न्यू वर्क, यू यू नो यू डोंट फॉलो अप। सो तो अभी तो हम लोग ने वो बंद ही कर दिया सर। मतलब सर नो मनी नो हनी। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल सर। और सर अगर किसी ने मेरा 5 लाख रुपया खाया है और वो नहीं दे रहा है, तो मैं उसको सीधा फोन करके बोल देता हूँ कि मैं क्लाइंट को फोन करके बोल देता हूँ, सर आप रख लो, सर हम आगे भी आपके काम नहीं करेंगे, और आपको अगर हजम हो जाता है तो कर लो सर। तो उसमें से 10 में से 8 तो दे दिए आके, बिकॉज दे रियलाइज दैट ये अभी गेम नहीं खेलेगा। और पहले क्या होता था? सर पहले तो सर वही सर, भीख मांगनी पड़ती। यू आर डूइंग द वर्क इन एडवांस, मतलब आप यू आर फाइनेंसिंग समबडी एल्सेस बिजनेस, और फिर भी आपको ऐसा भीख मांगनी पड़ती है सर। अरे सर दे दो सर, अभी तो सैलरी देना है सर, ये करना है वो करना है, टैक्स भरना है, जीएसटी भरना है।
वो सब बंद हो गया सर, इट्स ऑल स्टॉप। और अब हिम्मत कैसे आई? कैसे क्या है सर, सॉरी सर। हिम्मत कैसे आई कि क्लाइंट को बोल दिया भाई जयराम जी की मैं तेरा काम नहीं करूंगा? ये तो बहुत बड़ा सर स्टेटमेंट हो गया। सर दिस इज बिकॉज ऑफ यू सर, नहीं नो नहीं, अदर, देयर इज नो अदर सर। आपने जो जितने भी आपके जो टीचिंग्स है वो उसके वजह से हुआ है सर। आई यू रीच दैट अंडरस्टैंडिंग सर, वंस यू गेट दैट सर, माइंड अगर फ्री हो जाए ना तो सर ये सब चीज आराम से हो जाए, सोचना नहीं पड़ता। इट वी हैव नॉट लुक बैक। वेरी नाइस, एक्सीलेंट। और ये कोई पूछ रहा है कि कितना परसेंट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ बेटर सिस्टम से और कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ इंक्रीज क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम? सर आपका सर सिस्टम्स मेरे इतने अच्छे नहीं है, लेकिन आपने जो आपका जो टैगलाइन है वो मैंने पाया सर, एवरी ईयर डबल। वेरी दिस ईयर इट विल बी मोर देन डबल सर, फॉर वेरी श्योर। वेरी नाइस, एक्सीलेंट। एनी अदर क्वेश्चंस गाइस? Sir, I was very surprised you called me yesterday, sir. I don't consider myself as among the, but probably you felt that even a small entrepreneur should also come and share. So, यस, 100%, 100%, 100%, 110%. मतलब somebody who's not implemented the entire systems, not everything, somebody who's not had मतलब पूरा का पूरा so on and so forth. मैंने कहा कम लेट्स सी। सिर्फ आपका वो मंथली इंजेक्शन की जरूरत है, फर्स्ट वीक और फ्राइडे ऑफ द मंथ, वो बहुत जरूरत है सर। एंड सर ये भी कहना चाहता हूँ कि वी फेल मेनी टाइम्स, वी लेट गो, द बॉल ड्रॉप्स, छूट जाता है थोड़ा सा जब भी कुछ पर्सनल क्राइसिस आ जाते हैं, लेकिन सिस्टम जो बेसिक सिस्टम जगह पे रहती है तो यू कैन कैच गेट बैक अप विदाउट एनी प्रॉब्लम। वेरी गुड जी। एंड अट्रिशन कम हुआ क्या? सर एक्चुअली एट्रिशन का इतना मुझे प्रॉब्लम नहीं था सर, बट अभी वो खत्म हो गया सर, कि नहीं ब्लैकमेलिंग और आपने बोला था कि लोग आते हैं फिर चले जाते हैं। डजंट मैटर सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अब कोई जाए इंजीनियर चला जाए डिजाइन आज वाला, ही, टुडे टुडे आज ही, मतलब थैंक यू वेरी मच, ये आपका सेटलमेंट निकल जाओ बस। नहीं, मतलब कोई अगर डिजाइन वाला इंजीनियर चला जाए आपको फर्क नहीं पड़ता? होगा सर, हफ्ता हफ्ता 10 दिन का वो होगा, बट नॉट मोर देन दैट। उसमें आपको टेंशन नहीं आती? नहीं बिल्कुल नहीं सर। सर पहले वो सर वो आप जो फर्स्ट 6 वीक्स में ही सिखाया और वो सिस्टम्स थोड़ा बहुत जो आपने देखे वही लगाने के बाद ये सब प्रॉब्लम्स खत्म हुए सर। नहीं, बट अब पहले आती थी प्रॉब्लम, कोई डिजाइन इंजीनियर छोड़ के जा रहा है तो? बिल्कुल बिल्कुल सर, तो उसका तो you try to keep them back, give them some more and all that. Absolutely not सर, वो आपका जो इक्विलिब्रियम है ना वो हिल जाता है सर, वो सब करने से। और अभी साइट विजिट्स का कंट्रोल सिस्टम, कोई इंजीनियर जा रहा है साइट विजिट, है उसका पूरा सर, ट्रैकिंग सिस्टम है? साइट से ही रिपोर्टिंग हो जाता है सर डायरेक्ट। सारा सारा गूगल शीट पे आता है? हाँ, हाँ सर बिल्कुल। वेरी नाइस। उसका सिस्टम दिखा सकते सर हैं? ये एक चीज है सर जो मैं ज्यादा करके छोड़ा नहीं हूँ सर। आई डू अ लॉट ऑफ इट माई सेल्फ। आई आई मे बी आई डोंट नीड टू डू इट बट आई लाइक टू डू इट सर। मुझे साइट पे जाना बहुत अच्छा लगता है। नहीं, बट अगर अभी आप बंद कर दो साइट पे जाना? सर है, माय पार्टनर इज देयर, आई हैव इंजीनियर्स हु आर, जो जाते हैं सर, कोई इशू नहीं। मैं हफ्ता 10 दिन 20 दिन भी सर, अभी क्या ऑफिस तो मैं तो ऑफिस में बैठता हूँ, आई सिट आउटसाइड ओनली, तो वेर एवर यू आर, जहाँ भी हो सर वहां से काम हो जाता है सर। और पहले ऑफिस जाना जरूरी होता था? 100% सर, बिल्कुल नहीं तो चलता ही नहीं था सर। 3 दिन का छुट्टी या 4 6 दिन 8 दिन कहीं आउट ऑफ इंडिया गए तो बाय गॉड वापस आके पूरा वो सब उसका जो हॉलीडे का टेस्ट वो सब चला जाता है। अब नहीं सर, अब बिल्कुल नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब छुट्टी लेते हो बिल्कुल आराम से? हाँ सर, महीने में 3 4 दिन तो कहीं नहीं गया। हर एंड महीने every 3 months we do 7 to 10 days। नहीं, आप हर महीने पैंडेमिक के वजह से काफी कुछ हुआ नहीं, लेकिन जब भी ब्रेक था वो थिंग खुल गए तो लोकली इंडिया में 4 दिन तो आराम से निकल जाते, कोई इशू नहीं।
और उसमें फोन बजता है? नॉट सो मच, इतना नहीं इतना नहीं मतलब? सर। जो पहले बजता था वो तो वाइफ बोलती थी आप क्या कर रहे हो, आप चले जाओ, या आप ये आके भी फायदा क्या है, तो अभी वो नहीं होता। अब क्या होता है? मतलब कितना फोन बजता होगा अगर छुट्टी पे हो? सर नॉर्मली वो 9 to 10 में सब सेट हो जाता है सर। 9 बजे से 10 बजे एवरी डे अगर छुट्टी पे भी रहूंगा तो डे का टास्क और एंटिसिपेशन मेल का वो सब, तो 3-4 फोन आते हैं सर दिन में बस। क्लाइंट का, तो लेना ही पड़ता है। हाँ सर बिल्कुल, इट्स Got it. प्लेजेंट, इट्स नॉट डिसरप्शनल कि बाबा ये आपने नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये और टाइम पे जब नहीं हुआ। छुट्टी से वापस आते हो तो प्रेशर होता है वर्क का? नहीं सर, इट्स द सेम थिंग सर, अगर आई एम इन और आउट इट्स द सेम थिंग, कोई फर्क नहीं। वेरी नाइस जी, एक्सीलेंट, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच, रियली नाइस एवरीबडी. Thank you sir, I hope I've satisfied whatever I querying that you were. guys, I hope this has given you some understanding of your business, whether whether सर लाइब्रेरी की कुछ बात कर रहे थे. हेलो. थैंक यू रोहित जी. हेलो. फोर थैंक यू रोहित जी। सर Thank जो you, भी रोहित मैं जी। ये जो भी मैंने कहा है ना सर, ये सर आपको सिखाएंगे, ये वो टाइम पे आ जाएगा, इट विल कम एट द राइट टाइम. व्हाटएवर सर इज टेलिंग यू नाउ टुडे, यू इम्प्लीमेंटेड यस्टरडे, इट्स दैट इम्पोर्टेंट. सर लाइब्रेरी की कुछ बात कर रहे थे आप. Sir, we have design calculations, a lot of things which are already ready and available, so that is why it is easy today for the engineers. Even if I get a new person, it doesn't take long to train up. वेरी नाइस जी, वेरी नाइस. तो आपके सर हर चीज की लाइब्रेरी बनी हुई है? Sir, पूरा नहीं लेकिन काफी अच्छा बना है. Maybe तो वो शीट देखने को मिलेगी लाइब्रेरी की. sir, you contact me offline, sir. I'll show you. ओके फाइन, थैंक यू. My number is there. You can just send me a WhatsApp and sir. What is four account system, sir? You are talking a lot of times about four account system. Rahul sir. Hello. ये आपका इंडिपेंडेंट डेवलप किया हुआ है क्या? नहीं सर, पार्ट ऑफ द राहुल सर पोस्ट. सर का ही साइंस है. सिंपल है सर. जो भी हमारे प्रोफेशनल बिजनेस में जो फीस आते हैं, तो ऑल दोस फीस हिट वन पर्टिकुलर अकाउंट. नथिंग इज पेड आउट एक्सटर्नली फ्रॉम दैट अकाउंट. From that account, it gets distributed into 2 or 3 accounts which are for specific purposes. In my case, I will tell you what it is. One account is owner's compensation. The second account is fixed cost. And the third account is contingency, tax, and your reserves. So just then, the day the check hits the account, every 6th or 20th of the month, depending on when it has come, it gets divided in the ratios that have been allocated, and payments go out on from those specific accounts for that specific purpose. And जितना 90% तो 7 तारीख या 21 तारीख को ही होता है. Which one is the fourth account? The first account is actually the एक सेकंड छोड़ दो ना, मैं करवाता हूँ. रुक जाओ, मैं आज करवाऊंगा. 1 मिनट आप लोग, 1 सेकंड. आप लोग साइंस पकड़ रहे हो तो ढंग से पकड़ो, पूरी साइंस पकड़ो, एक तरीके में पकड़ो. वी गेट दैट डन. आपको क्या लगता है मैं ये रोहित के बैच को करवाऊंगा, आपके बैच को मिस कर दूंगा? सर वही मैं कह रहा था. अभी जो सर बोल रहा है वो पहले करो, ये सब अपने आप आ जाएंगे. The next 2-3 weeks all these things will come, and but please implement it sir. Whatever sir says, सोचना नहीं. जितने भी टेक्निकल लोग हैं यहाँ पे, आप लोग अपना दिमाग मत लगाओ सर. मैंने लगाया और वो बड़ा प्रॉब्लम हो गया सर. सर आप इतनी ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी लाते कहाँ से हो? आपको लग रहा है आप बैच के टॉप 5 में नहीं आते? हमको लगता है इतनी ऑनेस्टी, सिंपलिसिटी. नहीं सर, nothing like that. Nothing like that, sir. I mean, that's my nature. It's good to be upfront what you're capable of, not capable of. And people, you don't need to sugarcoat anything, sir. It doesn't help. At the end of the day, it doesn't help. रोहित जी, आपने बोला काफी सारा साइड का काम आप करते हैं, वो आप अपने इंटरेस्ट से करते हैं कि ये कर सकती, बट जस्ट बिकॉज ऑफ योर इंटरेस्ट यू आर डूइंग इट? नहीं sir, see, I've been doing this for 25 years now and I really enjoy it.
Okay. रोहित जी, I would like to connect with you. We'll give you a call whenever I get a chance Please, because please. आपको जो problems है वो हमारी same है. कोई बात, anytime for any BMP batchmate or alumni or current student, we have all the time. Sir, ये I would like to tell everybody, ये आप एक चीज देखोगे, जितना भी BCI की community वाले हैं ना, they are selfless. 99% of the people are selfless and they will take out time for you at any time. Rohit ji, you explained everything so perfectly. I'm in a service industry and I was really wondering how to implement this in my service industry. But thank you very much. It boosted my confidence today. And that All we the will best. be able to do. All I the will best. also connect you to share more experiences of yours. Yeah, Please, so please. thank you very Anytime. much. Anytime. Rohit ji, I'm- The best Rohit part sir. is that you spoke from your heart and like total honesty and great. You're simply great. Thank you. Thank sir. you, Rohit Thank ji. you, thank you, everybody. Thank you. रोहित सर, थैंक यू सर। थैंक यू रोहित पूरा जी। इमोशन डाल के बात किया सर। हाँ, Thank you, आपसे Rohit बहुत ji. कुछ सीखने मिला, आपने पूरा इमोशन से बात किया। Thank you, sir, for bringing Rohit ji around today. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much. Anytime ji, anytime. Thank you, Rahul, sir. Thank you Rohit ji, thank you sir, Thank you, Rohit ji. Thank you, Rohit sir. Thank you ji, thank you. Thank you, Rohit sir. thank you, Thank you, sir.